شکریہ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے بھی صاحب سے. اچھا 23 مارچ ہے چونکہ, اور 23 مارچ کے حوالے سے ہم ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی تھی, ظاہر یہ پاکستان بنا 23 مارچ کو قرارداد پاکستان میں پیش کی گئی, اور پاکستان بنا جب ظاہر ماہ اگست میں تو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ تھا. ہم چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی اس زمانے میں جو لوگوں کا عقیدہ تھا, جذبات تھے خاص طور پر, اور یہ پہلا ملک ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی چاہیں گے روشن ڈالیں. 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش ہوئی, جو کہ مینار پاکستان کے سائے میں منٹو پارک میں, اور یہ 14 اگست 1947 کے لیے سنگ میل. اگر 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش نہ ہوتی تو پاکستان میں معرض وجود نہ آتا. تو دنیا کے نقشے پہ دو جو ریاستیں ہیں نا, وہ ہجرت کے بعد معرض وجود میں آئیں. ایک ریاست مدینہ, ایک پاکستان کی ریاست. بالکل. اور اس مائیگریشن میں لاکھوں کے حساب سے مسلمانوں نے, مرد و زن نے اپنی قربانیاں پیش کی. بالکل. اور اپنے خون سے سینچا. اور آج بھی جو ہمیں پاکستان قائم نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ اس کے بنیادوں میں شہداء کا خون ہے. اور علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا کہ کیا اسی لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے کہ بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے. تو آج پاکستان بدقسمتی سے مسائلستان بن چکا ہے. ہم نے اس وقت پاکستان حاصل کیا, ہمارے اسلاف نے تو اللہ کے نام پہ حاصل کیا. یہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور اس کا منشور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے نظام کو عملی طور پہ یہاں نافذ کیا جائے گا, اور مسلمان آزادانہ طور پر ایک اسلامی ریاست کے اندر اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے. لیکن بدقسمتی سے اس ملک کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آئی جو بدقسمتی سے اس کے ساتھ ڈیووٹیڈ نہیں تھے. تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے کہ آج پاکستان جو ہے نا ایک مسائلستان کی صورت اختیار کر چکا ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا کرپشن نے ہر ایک ادارے کو کھید کر رکھا ہے. اور اللہ رب العزت نے واضح طور پہ قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ علامہ اقبال نے کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لیں. بالکل. آج ہم نے حالات کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نظام چل رہا ہے ہم بھی چلتے, اور انڈیویجولی بھی اپنا رول پلے نہیں کرتے. ہم پہ بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, انڈیویجولی بھی ہمارے اوپر لائبلٹیز ہیں, اور کولیکٹیولی بھی یعنی من حیث القوم ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نے اس ملک کو سنوارنا ہے. اور انشاءاللہ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک عظیم نسبت ہے. نسبت یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کے پرنور ساعتوں میں معرض وجود میں آیا. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ تو ظاہر مسائل کا سامنا تو ہمیں رہا ہے, کرپشن اور دیگر مسائل کا, لیکن چونکہ ایک چھوٹا ملک ہے ہمارا, ہمارے پڑوس میں جو ازلی دشمن ہے ہمارا, ہم سے تو ظاہر بہت 10 گنا زیادہ بڑا ملک بھی ہے, اور اس کی ہمیشہ سازشیں بھی رہیں پاکستان کے خلاف, اور ظاہر ایک آنکھ نہیں باتیں ہم اسے تھوڑا سا والے سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ ظاہری جنگیں بھی چھیڑ کر دیکھ چکا, آزما بھی چکا ہمیں, اور پھر مقبوضہ جموں کشمیر میں جو مظالم اٹھا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکے چکے نہیں. تو اس پہ بھی تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ضرور روشن ڈالیے کہ وہ جو ہمارے خلاف سازشیں ہیں جو پنپنے نہیں دینا چاہتی اس ریاست کو. اصل میں بات یہ جی کہ ہماری دفاعی جو صورتیں ہیں, دفاعی لحاظ سے بھی, اقتصادی اور معاشی لحاظ سے بھی بہت سارے چیلنجز ہیں. ان میں سے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہمارا جو ہے نا وہ دفاعی, یعنی ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ ہمارا مسئلہ جو ہے نا دفاع کا ہے, اور بہت سارے ہمارے جو ہے نا وہ وسائل اس پہ خرچ ہوتے ہیں. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی گنا وہ تعداد میں بھی بڑے ہیں, ان کی فورسز بھی بڑی ہیں, ان کے پاس وسائل بھی ہیں, اور ایز کمپیئر اگر وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر اتنے وسائل نہیں تو ہمارے پاس ایمان کی قوت, ایمان کی طاقت ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. وہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی مینشن کیا تھا کہ حفیظ جلندری نے یہ غزوہ بدر کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت کیا تھا, نہتے مسلمان, لیکن دل و جان سے آقا کریم پہ نثار, اور سچے دل سے آقا کریم کے محبت دل میں جاگزین رکھتے تھے کہ ان کے پاس 4 گھوڑے, 6 زریں, 8 شمشیریں, پلٹنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں. یہ لشکر دنیا میں انوکھا تھا, نرالا تھا, کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. تو مسلمان جو ہے وہ تیغ و
तलवार पे ज़्यादा यकीन भरोसा नहीं नहीं करते, करते। वो अल्लाह के फजल पे और ईमान पे ज़्यादा डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास ईमान की ताकत है, और फिर सबसे बड़ी बात है डिवोशन जो है वो हमारी हर एक फोर्स की मुल्क के साथ है। और इक्तिसादी लिहाज से हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, माशी लिहाज से भी बदहाली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास एटमी ताकत जो है ना वो मोहसन पाकिस्तान का हम पे बड़ा एहसान है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का। हम उन्हें भी इस मौके पर सलाम अकीदत पेश करते हैं। बिल्कुल तो वो डिजर्व करते हैं। हाँ, डिज़र्व करते डिज़र्व करते हैं, हैं। तो उनकी वैसे मेहनत तो यह है कि अहमद नदीम कासमी साहब ने कहा था कि उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात है कि दफनाएंगे एजाज के साथ। वाह, तो हम तो मुर्दा परस्त कौम हो गए हैं कि मरने के बाद हम जो है ना वो तराने भी पढ़ते हैं, उर्स भी मनाते हैं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये है लेकिन कि वक्त जिंदाओं की कदर नहीं कदर करते। नहीं करते। कदर नहीं ये- कदर नहीं करते, ये बड़ी अहम चीज़ है। हम बिल्कुल। लेकिन ये अली कितनी ज़बरदस्त बात है कि करारदाद पाकिस्तान भी रमज़ान मुबारक के महीने में पेश की गई। उसके अलावा पाकिस्तान आज़ाद भी तब हुआ जब रमज़ान मुबारक का मखसूस महीना चल रहा था, और पाकिस्तान का जो वजूद है वो कलमा तैयबा के उस पर मार्ज वजूद में आ कोई गया। शक नहीं। तो ये आप नहीं समझते कि अल्लाह पाक की हम पे कोई अल्लाह खास ताला का रहमत ज़ाहिर है? ब्लेसिंग है ये, Blessings, सर। blessings, बहुत कोई blessing शक है। नहीं। मतलब देखिए जैसे आपने जी, मिसाल दी, दुनिया में दो ही मुल्क बने दो हैं। ही मुल्क बने, कलमे के यानी नाम पे। रियासत मदीना थी या रियासत पाकिस्तान बनी है। और फिर यह है कि आप देखें ना कि इसी तरह उस वक्त भी चैलेंजेस थे कि एक तरफ रोम था, एक तरफ ईरान था। ये सुपर पावर सुपर पावर जी। और यहाँ भी जब पाकिस्तान बना है, दो ताकतें बड़ी सुपर पावर थी, एक तरफ रूस था, एक तरफ अमेरिका था, बल्कि रशिया इस जमाने में तो सुपर पावर कहा जाता था, फिर उसके बाद वो बन गया अमेरिका। तो चैलेंजेस जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारी निस्बतें हैं और ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, बेशक, बेशक, बेशक। अच्छा, चूंकि माह रमज़ान का प्रोग्राम है और ये जिक्र भी ज़रूरी था 23 मार्च का, क्योंकि 23 मार्च ज़ाहिर है हम सब जानते हैं 23 मार्च की बड़ी अहमियत है। 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क में करारदाद पेश की गई जो मंजूर भी हुई, और फिर सिलसिला ज़ाहिर है बहुत दराज नहीं हुआ, लेकिन 7 साल के बाद ही फिर पाकिस्तान वार से वजूद में आ गया 14 अगस्त 1947, और रमज़ान मुबारक का महीना था। तो अब बात कर लें सर थोड़ी सी रमज़ान मुबारक के हवाले से पलट कर फिर आते हैं। एहतिकाफ़ की आपने मिसाल दी और आगे बढ़ गए थे, हम चाहते हैं थोड़ी सी एहतिकाफ़ पर बात हो जाए। 3 किस्म के एहतिकाफ़ आपने बयान फरमाए, वो तीनों का थोड़ा सा हम चाहेंगे बता दीजिए। जी, एक तो नफली एहतिकाफ़ होता है, एक वाजिब है और एक सुन्नत। सुन्नत को मसनून भी कहते हैं। वाजिब एहतिकाफ़ इस तरह का है कि इसकी डेफिनेशन यूँ हो सकती है कि कोई शख्स जो है ना वो मन्नत मानता है कि मालिक ये मेरा काम हो जाए तो मैं नज़र के तौर पे एहतिकाफ़ करूँगा, तो वो फिर मखसूस अय्याम का एहतिकाफ़ करता है। इसके दौरान जो है ना रोज़ा रखना भी वाजिब है, ये मैंडेटरी है, हर सूरत में वाजिब है। और दूसरी सूरत ये है कि नफली एहतिकाफ़ है कि जो ही आप एहतिकाफ़ के दिनों में मस्जिद में अल्लाह के घर में या एहतिकाफ़ गाह में दाखिल हों तो नवाई तो सुन्नतुल एहतिकाफ़ की नियत कर लें, जितनी देर बैठेंगे अल्लाह रब्बुल जब भी मस्जिद में जाएं आप जी नवे सुन्नतुल एहतिकाफ़ कहा आपने, और आप जाकर जी बैठ जाएं जी। और इसकी भी बड़ी फजीलत है। आका करीम हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन एतिकाफ़ा यौमन इब्तिगा वजहिल्लाह, के जिसने एक दिन का एतिकाफ़ अल्लाह की रज़ा के लिए किया, जअलल्लाहु बैनहु व बैन नार सलासा फनादिक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों का फासला कर देते हैं। सुभान अल्लाह। 3 खंदकों का, और एक खंदक का फासला आका करीम ने फरमाया इतना है जितना मशरक़ व मगरब का फासला नहीं है। आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि मसनून एतिकाफ़ जो 9 और 10 रोज़ का है उसकी फजीलत का कितनी होगी, यानी कि एक दिन के एतिकाफ़ की बात हो रही है। एक दिन के एतिकाफ़ की। और मसनून एतिकाफ़ ये है कि आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैरवी में जिस तरह आका करीम जो है ना वो हर साल एतिकाफ़ 10 रोज़ का किया करते थे, महीने का भी किया, 20 दिनों का भी किया और 30 दिनों का भी किया और 10 दिनों का लगातार। और एक माह मुबारक में यानी एक साल हुज़ूर अलैहिस्सलाम माह रमज़ान में एतिकाफ़ नहीं कर सके, तो दूसरी दफ़ा जो ना अगले साल आका करीम ने 20 अय्याम का एतिकाफ़ किया। तो आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में हम मसनून एतिकाफ़ करते हैं आखिरी 10 रोज़ का या 9 रोज़ का। तो ये एतिकाफ़ मसनून एतिकाफ़ है, और ये रिवायत है हज़रत अली बिन हुसैन उर्फ़ आम में जिनका लक़ब मशहूर है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आप अपने वालिद गिरामी हज़रत इमाम हुसैन से रिवायत करते हैं, आप अपने नाना जान से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए
आखिरी अशरे का इतिकाफ करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हज जातैन व उम्रतैन उसे 2 हजों और उम्रा शरीफ का सवाब अता सुभान फरमाता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखें इस गरीब उम्मत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और आका करीम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी तवज्जुहात हैं, अल्लाह का कितना फजल व करम है कि जो गरीब शख्स जो है ना वो अगर हरमैन शरीफैन हाज़िर नहीं हो सकता मक्का पाक में, मदीना पाक में, बैतुल्लाह शरीफ में, तो उसे घर बैठे हुए अगर इतिकाफ करता है इतना बड़ा अजर व सवाब के 2 हजों का, मकबूल हजों का और 2 उम्रों का और मकबूल उम्रों का। इसमें मुफ्ती साहब जो मसाजिद में जाकर नौजवान भी बूढ़े भी रखते हैं, एहतिकाफ में बैठ जाते हैं, उसमें कोई एज का भी लिमिट है कि 7 साल से बड़ा बच्चा हो या 18 साल से ज़्यादा एज का होगा तो ही वो कर सकता है मस्जिद में एहतिकाफ? जो शराइत एहतिकाफ है वो ये है कि आकिल हो, बलूगत की शर्त नहीं है, ज़हनी तौर पे बालिग हो सकता है। कि ऐसे बच्चे भी हैं जो छोटे होते हैं 10 साल के भी होते हैं लेकिन माशाल्लाह इल्मी लिहाज से, अकली लिहाज से बलूगत उनको हासिल होती है। अच्छा। आकिल हो, मुसलमान हो और हदस अकबर से पाक, एहतिकाफ की नीयत हो, यानी मर्द है तो जनाबत से पाक हो, औरत है तो हैज़ और निफास से पाक हो, तो एहतिकाफ की नीयत हो। और आखिरी अशरा माह रमज़ान मुबारक का। और इस तरह ख़वातीन को कहा गया कि घर में जी घर में उसको बैत मस्जिद कहते हैं कि जिस हिस्से को आपने नमाज के लिए, सजदा गाह के लिए ख़ास कर रखा है वहाँ ख़वातीन अपने घर के अंदर इतिकाफ़ कर सकती है। अच्छा, एहतिकाफ जो लोग करते हैं मसाजिद में हो या घर में ख़वातीन करती हैं तो उन पर ये पाबंदी होती है कि किसी भी बातचीत नहीं कर सकते हो? बातचीत जो है ना वो ये है कि अगर ज़रूरत के तहत है तो हो सकती है। जिस तरह कोई सर्व करने वाला है तो अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो आप किस तरह, ठीक है, तो हत्तल वसा कोशिश ये करनी चाहिए कि चूँकि हमने अल्लाह की तरफ तवज्जो मबज़ूल करनी है, रखनी है, और ये है कि हमने अपने माशरे से कट जाना है और अल्लाह से लो लगा लेनी है, ये मकसद है। तो इसलिए ज़ाहिर है कम से कम कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। ज़्यादा से ज़्यादा बात नाज़रीन, जिस तरह हम प्रोग्राम में इतिकाफ़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या मसाइल हो सकते हैं, क्या ज़रूरियात पास होनी चाहिए इतिकाफ़ के लिए, साथ ही ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें निगलेक्ट करना चाहिए, इसी हवाले से मुफ्ती साहब से मज़ीद भी बात करेंगे। शामिल कर लेते हैं एक नात, और नात के बाद हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी। रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई